Good बहुत morning. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Good morning. Good morning. Good morning. Good थैंक morning. यू, थैंक यू, थैंक यू आप सब लोगों को। आप सब लोग जल्दी आ गए। हाँ, Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning. Ankit, good morning. Good morning, everyone. बहुत ही बढ़िया। good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इतना प्यारा दिन है आज। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। आज कुछ नए लोगों से सुनना चाहेंगे कि कोई नए लोग जिनके जीवन में जादू चालू हो गया है। कौन शेयर करना चाहेगा? जिन्होंने आज तक नहीं किया प्लीज वो हाथ उठाइए। काफी सारे हैं यार रवि भाई। कौन शेयर करना चाहेगा? जिन्होंने आज तक नहीं किया प्लीज वो हाथ। आस्था, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आस्था, आपसे चालू करते हैं। Good morning, Ravi Bhaiya and Ankit Bhaiya and everyone rather. Actually, I wanted to share something, a magic that had happened to me yesterday. Yes, Astha, please. It is actually, usually all of the ladies here would definitely, ones who don't carry purses all the time and the housewives, they usually keep handy money somewhere or the other just as they are going out. So they jaldi se paisa nikal liya and market chale gaye, kind of that. So there is a place जहाँ पे मेरा almirah में purses and all that रखा हुआ है, and I was doing my accounting and I was short of 3,000 rupees. So I just gave it a glance कि 3,000 rupees कम है, and then कुछ दूसरे काम में लग गई. Suddenly जब मैं bill pay करने जा रही थी, तब मैंने जो amount था almirah में से वो निकाला, and purses वाली almirah में just generally कि हाथ डाला जहाँ पे मैं रोज हाथ डालती हूँ वहां पर ही, एंड वहां पे रोज कुछ नहीं होता है. एंड देन देयर वाज अ पर्स. मैंने सोचा कि पता नहीं इसमें कुछ तो नहीं है, उसमें निकाल के निकाला एंड उसमें कुछ नहीं था, बट उसके नीचे आई गॉट 6,000 rupees. And it was like, wow, out of nowhere when you get a 6,000 rupees. चलो, वेरी गुड आस्था जी, कांग्रेचुलेशंस। कल आपको 6,000 रुपए और मिले। थैंक यू सो मच। बट गाइज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा वापस आस्था जी, जब भी आप लोग सेशन में आते हो तो आप एक चीज पे कंसंट्रेट करोगे, उसके रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आप वॉक करते हुए अगर चीजों को करोगे ये सोच के कि मैं वॉक भी कर रही हूँ, तो ना इधर आपके शरीर को कुछ फायदा मिल रहा है, ना इधर आपको इस सेशन से कुछ मिल रहा है। नहीं भैया, I'm not doing the walk. I'm just sitting there because I like the greenery. And Okay. greenery के साथ सेशन में, इसलिए I'm sitting on a bench and doing these sessions most of the time. चलिए, वेरी गुड। एनीवन एल्स? हैं रवि भाई, हैं, काफी हैं। मेरे पास काफी लोगों के फोन भी थे, और so please raise your hands, whoever want to share, otherwise I will take names. Can I? हाँ अंकल। हाँ सर, हुकुम। Good morning, everyone. There was a great miracle yesterday night. I was not expecting it. One of my relations, जिनसे कुछ सालों से हमारी ज्यादा बोलचाल नहीं है, खाली हेलो हेलो जय जिनेंद्र से ज्यादा नहीं है, they are very close with me. कुछ हार्ड टाइम हम लोग के साथ गए तो we were not able to match each other. अचानक ही कल शाम को फोन आता है कि हम आज आपके यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए.
They all came with family. All four, husband, wife, and two sons, big sons. They all came, had dinner with us. They were here midnight till 2 o'clock. It was really great miracle for me. सर अच्छी बात है, आप जैसे जैसे पॉजिटिविटी आ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव लोग आपके पास आ रहे हैं, सारे गिले शिकवा दूर हो रहे हैं. हाँ, दैट इज इससे Great. बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती सर. अगर रिश्ते सुधर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है सर. Thank you, thank you, thank you. हाँ जी, एनीवन एल्स? मानसी? मानसी आप अनम्यूट हो. Hello. यस. Okay, good morning, sir. To Ravi sir and Ankit sir, and hello to everyone. This is my first time sharing the story with you, probably because I was able to wash my face before coming to this morning session. So I've been doing this secret and law of attraction since 2011, and everything in life has been going very good. But then this one thing has like drastically changed was that मैं और मेरा भाई दोनों like 2.5 years का age gap है, and of course जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है तो we would also fight a lot. But for past 2 days, it's only just been 2 days of me practicing magic, this gratitude practice, and we both have become so kind and compassionate towards each other. We have been helping each other, which was never the case. I'm really, really grateful to both of you and to each one of you for this beautiful magic that you're bringing into our lives. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मानसी. बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं ना और आप लोग कूल हो रहे हो तो इससे अच्छा जादू नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी ही आपको अच्छे रिश्तों से मिलती है. कांग्रेचुलेशंस. और कौन है? अब नाम लेके बुलाना पड़ेगा किसकी लाइफ में क्या हो रहा है. मनीषा जी, कांग्रेचुलेशंस. आपकी मेरी बात हुई थी एंड आई नो आप बड़ी स्ट्रेस थी. मैंने आपको बोला था स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, और यू कैन सी द मैजिक. यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. It was so magic. I can't believe it. But the day one before, I just pay gratitude to him, saying that he has done whatever years he has worked with me, and I'm really thankful for that. And Kal, all of a sudden, he came and he said, I am coming. मैंने कहा, I haven't said you to go also, but he said, I'm coming. मैंने कहा, most welcome. And this is a real magic. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मनीषा जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. इट कीप्स अस हैप्पी एंड हमारे को भी सुनने में बहुत मजा आता है. सो लेट्स हैव समथिंग फ्रॉम सुनीता जी टुडे. सुनीता जी. जी गुड मॉर्निंग भैया. गुड मॉर्निंग. आप क्या चल रहा है आपके जीवन में? कुछ अच्छा? जी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है भैया. तो आप परसों एक फ्रेंड का अचानक मेरे पास फोन आया था. थोड़ी सी स्ट्रेस में थी और 3-4 दिन से उसको रोना ही रोना आ रहा था. मुझे भी ये चीज याद आई. मैंने कहा तू इसको ज्वाइन कर. तो कल तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई. उसका ज्वाइन हुआ नहीं. 100 सारे हो गए थे लोग. तो उसने फेसबुक पे देखा था. मैंने उसको सारे 4-5 दिन के सारे वीडियो भेजे. उसने देखे, उसको बहुत अच्छा लगा. आज शायद वो है भी सही, इसमें ज्वाइन भी किया है इसने. तो उसकी इससे थोड़ी सी खुशी के लिए मैं आप लोगों को सबको थैंक यू. थैंक यू सुनीता जी. थैंक यू. वी हैव अनीता. अनीता पेड़ीवाल. Good morning, Ravi Bhaiya, Ankit Bhaiya. Good morning, everyone. Yes. So, when I started my journey here, basically it was Akhil Jiju who made me join this, and I was like, okay, अभी जब इतना बोल रहे तो ठीक है कर लेते हैं. So I started with that thing,
एंड आई मस्ट से कि हर रोज मुझे ये फील हुआ है कि आई कैन फील द मैजिक, जैसे वो मेरा वर्क फ्रंट हो, जैसे वो मेरा घर हो, जैसे वो मनी रिलेटेड हो, छोटी छोटी जगह से, ऐसी जगह से मुझे पैसा मिला है कल और परसों में जहां मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे वर्क फ्रंट पे मेरे पास बच्चों के पेरेंट्स का फोन आ रहा है जो पहले भी बोलते थे, बट नाउ स्पेशली दे कॉलिंग अप एंड दे सेइंग दैट मैम यू आर मेकिंग सो मच ऑफ डिफरेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ दैट वी आर एट पीस बिकॉज ऑफ यू। बच्चा पीस है, बच्चे को है कि नहीं, बट देन वी आर एट पीस बिकॉज वी नो दैट यू आर देयर टू हैंडहोल्ड हिम। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू अखिल जीजू, थैंक यू अंकित भैया, थैंक यू रवि भैया, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। आप क्या करते हैं, कुछ शेयर करोगे? I'm teaching. I've been teaching in Nirja Modi School for the last 15 years. That's great. That's really, really great. Thank you so much for the wonderful sharing. Thank you. एक काम करते हैं, क्या है कि फ्रंट पेज पे जो सब फोटो वाले आते हैं, आज किसी को बैक पेज से बुलाते हैं। लेट्स हैव अंकित बढ़ाया। बहुत दिनों से उसने कभी शेयर नहीं किया। लेट्स हैव अंकित बढ़ाया। अंकित, अंकित आप सुन रहे हो? अच्छा, अंकित नहीं हो पा रहा। आज मैं एक ऐसे जने को बुलाना चाहता हूं जो मतलब जिनको ज्ञान से प्यार है। मेरे हिसाब से इनसे ज्यादा ज्ञान किसी ने जीवन में नहीं लिया होगा, और मैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि उनको इस क्लासेस में, इस सेशंस में कैसा लग रहा है। सौरभ भाई थी, बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको बुला के आपसे कुछ शेयर कराऊं। रवि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपने और अंकित भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो सब सहयोग कर रहे हैं वो भी बहुत जोरदार है, इसलिए सबको थैंक यू। एंड सबसे बड़ी चीज एक ही रवि भाई कि भाई ये कंटिन्यूटी में लाइफ में आना चाहिए और रूटीन चलना चाहिए। और जो आपने इनिशिएटिव लिया उससे मेरा पेस और बढ़िया हो गया है। मैं कर रहा था बट कहीं ना कहीं बहुत से पार्ट पे आलस कर जाते हैं, उसको खत्म कर दिया है। और रिटर्न पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है कि ताकि भाई हाथ से लिखना है। मैंने तो अभी तक क्या है, वॉइस नोट्स में बना के सुनते थे, और डेली मतलब हर चीज लिखी जा रही है। और धन्यवाद आपको, अंकित भाई को और सबको, क्योंकि सब जने आ रहे थे, ऐसा लग रहा है यार ये सब आ सकता है तो मैं भी, मतलब कंटिन्यूटी के साथ मतलब मजा है सबसे बड़ा, और बहुत इफेक्ट हुआ रवि भाई। थैंक यू सो मच सौरभ जी। जरूर हम लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं और बहुत हेल्प करता है वो। रवि भाई, एक आकांक्षा, Yeah. Hi everyone. Good morning. Morning, Akansha. Yeah. First of all, thank you so much, Ravi Bhaiya and Ankit Bhaiya, for starting this club. I mean, from past 13 years, I used to go to my, Pihar for my summer vacation. So, I mean, so this is a beautiful way to be connected with the parents in such a meaningful way. Both my parents are also attending the session regularly. So it was all the more necessary for me to go this year because my dad had a kidney transplant last year and my mom was a donor. So if it is okay, I would like to also call my mom because we both had done this gratitude while they were undergoing surgery. If it's okay, can I call her? Yes, please call her. Mama, are you there? अच्छा, सीमा जी हैं। Please, yes, now we can listen to her. Hello, sir. Thank you. Welcome, Seema ji. It's a very good experience as my husband and my son is even attending the session. Thank you, both of you, lots and lots. We had a very good experience in Coimbatore. My husband had a kidney transplant and it was a very positive, like everything was very positive there. That time we didn't realize it. But now we are realizing as attending your session कि हम लोग वहाँ पे थैंक यू बोलते थे अनइंटेंशनली सबको, बट ये नहीं पता था गॉड कैसे हम लोग को उस चीज को रिपे कर रहा है।
and he really repaid as everything went very well. And my son Abhishek and my daughter Akansha both were very caring and helpful. और बहुत अच्छे से स्मूथली से इनका ऑपरेशन हुआ एंड वी डिडंट रियलाइज कि देखो इतना बड़ा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ. ऑल द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वी थैंक देम एंड थैंक यू टू both of you to give an opportunity to attend this session. Thank you. So the entire time we were only thanking the hospital staff, the doctors, everybody, the auto driver, the taxi driver, anybody who was there. So I think now we can relate how thank you works like a magic. So ग्रेट आकांक्षा, ग्रेट. बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पूरी फैमिली एक साथ कर रही है. जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ कर रही है तो ये आप मान लीजिए आप सब लोगों की जो सेम फीलिंग, जिस फीलिंग में आप लोग रहते हो, वो आपकी बॉन्डिंग, आपका प्यार, जो मैजिक है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगा. एवरीथिंग विल स्टार्ट डूइंग वेल. और कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ पर मैं क्या करूं, मेरे फैमिली में जो स्थिति है और जो चीजें हैं वो बहुत नेगेटिव है, मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं. सो गाइस, थोड़ा सा सब्र रखिए. आप लोग चेंज हुई है, आपका ऑरा आखिरी तक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप लोग दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे. आप लोग दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे सचिन भाई ने कल बोला था, सबसे बड़ा अधर्म ही निंदा है. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आपको गलत नहीं बोलना है. आपको गलत नहीं बोलना है. आसपास की परिस्थितियां अगर नकारात्मक हैं तो उसमें स्ट्रांग सकारात्मक इंसान बन के खड़े रहना है. इसलिए हम लोग शुरू से बोले थे कि आपके लव्ड वंस को बुला लीजिए, आपके लव्ड वंस को बुला लीजिए. तो जो फैमिली कर रही है उनकी लाइफ में तो सच्ची में बहुत ही कुछ चेंजेस आ गए हैं, बहुत अच्छा आ गया. एंड वी हैव दिस लाइव एग्जांपल ऑफ आकांक्षा एंड हर मदर सीमा जी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एंड आप लोगों ने ये जो शेयर किया इससे दूसरे लोगों को भी काफी इन्फ्लुएंस हुए होंगे सब लोग. Akshata, I want to say something. Akshata, you can unmute yourself. Good morning, Bhaiya. Thank you so much to you both. Bhaiya, कल जैसे I don't know, before I went to sleep I don't know for what reason, but I was not feeling that great or doing great. But morning जैसे I had to write the blessings. Blessings के बाद I don't know, I automatically started crying and I'm feeling fresh now. Why did this happen? And I just really don't know. I was automatically low, and once I gave all those blessings, पहले से first day one से जो blessings लिखे थे उसको सारे वापस repeat किए, and now I'm like very very fresh, feeling so good. अंकित, आप जवाब देना चाहोगे इसका? अक्षता, बेसिकली क्या होता है कि इन चीजों पे है ना, मतलब ये इसको है ना, लेट इट फ्लो, डोंट स्टॉप इट. बिकॉज आप इतनी कंप्लेन और इतनी नेगेटिविटी में रहे हो एंड आप सडनली 6-7 दिन 8 दिन से बहुत रेगुलर पॉजिटिव यू आर डूइंग इट. सो जस्ट लेट इट फ्लो. द इमोशंस विल कम अप एंड डाउन होंगे, बट देन अगेन व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, आपका अंदर का दर्द वापस बाहर निकलेगा एंड इट विल आराम से निकल जाएगा. तो मतलब आपके आंसुओं में आपकी नेगेटिविटी बाहर निकली है. दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर दैट. Okay, thank you. मैंने कल आपको एक चीज और बोली थी, जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी चीज की कंप्लेन करो, किसी चीज को क्रिटिसाइज करो या किसी चीज को कंडेम करो. अगर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी सिचुएशन को लेके कंप्लेन करो. सो वो फीलिंग रहना जरूरी है. इसलिए कल वापस मैंने बोला था, जितना जल्दी आप सुबह को करोगे, पूरा दिन वो फीलिंग्स आपके साथ रहेंगी, और वो पूरा दिन फीलिंग्स के साथ रहेंगी तो आपका नेचर अपने आप बदल जाएगा, आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी, आपको किसी में कुछ बुरा दिखेगा ही नहीं. जब अगर आप नहीं थे, आपके दिमाग में जब गलत चल रहा था, तो आप ये समझ लीजिए आप ग्रेटिट्यूड की फील में नहीं हो. आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड जब आपको कुछ गलत हो रहा है आपके साथ. थैंक यू सो मच. Thank you. आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये कुछ लोगों को और भी कुछ लोगों के साथ यही चीज हो रही है. सो थैंक यू सो मच. Thank you, Bhaiya. संगीता जी,
हाँ जी। You want to say something? Yeah, unmute yourself. हाँ, कल मुझे मेरी एक फ्रेंड ने, सुनीता जी करके उदयपुर में है, उन्होंने ये ज्वाइंट करने को बोला था। मैंने कल उनका ऑडियो सुना, आपका ऑडियो सुना, मुझे कल बहुत अच्छा लगा। पर फिर भी दिन में मेरे घर मैं पोस्ट ऑफिस में एजेंट हूँ, तो वो पोस्ट ऑफिस की जो मेरे सर है वो घर पे आए पोस्ट का काम करने के लिए। पता नहीं बहुत रोना आ रहा है, बॉडी पूरा शिवरिंग कर रहा है, और मैं अभी जैसे आपसे भी बात नहीं कर पा रही हूँ। तो जबकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, और फिर भी पता नहीं अचानक ये सिचुएशन क्यों आ गई। I can say that don't hold your tears को निकाल दीजिए। tears की मतलब आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। really don't hold tears inside you because you are holding something inside you. You maybe not share on this platform, but then again you're holding something or other, and let it flow out, just let it flow out. संगीता जी, मैं मैं किसी और की भी शेयरिंग थी कुछ ऐसे ही। स्पेशली जब हम बड़े होने लग जाते हैं तो हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। मैंने कल किसी से बात की थी, उनका नाम मेरे से मिस हो रहा है। उनका कहना ये था कि मेरे को मेरे परिवार में सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जब आप ऐसे सोचने लग जाते हो तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट होने लग जाते हो। अगर आप लेडी ऑफ द हाउस हो तो आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और मैं सबका बहुत ध्यान रखती हूँ। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि जो चीजें हो रही हैं वो आपके व्यक्तित्व से हो रही हैं और आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप कल आई हो, आप हमारे साथ बहुत शुरू से नहीं चल रही हो, इसलिए आपको हो रहा है। पर मैं बस ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप, ये क्या है कि ये मैजिक ऐसा नहीं है कि आज का सेशन अटेंड किया और मैजिक आ गया। आप अगर हमारे साथ चलते रहोगे तो जरूर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और जैसा अंकित ने कहा कि आपके आंसू आ रहे हैं तो प्लीज उनको आने दीजिए, आप हल्का फील कीजिए और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में आइए। जैसे वो फीलिंग आएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप आपसे दूर चली जाएंगी। थैंक यू। कृतज्ञता वाली फीलिंग में। सो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, स्पेशली जो 50-55 हो रहे हैं, प्लीज आप लोगों का व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को चलाओ। सो प्लीज अपने आप को डिपेंडेंट मत कीजिए, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं और आप खुद इंडिपेंडेंट हैं और अपनी चीजों को खुद करने की साहस रखिए। प्लीज ऐसे मत सोचिए कि मेरा ध्यान कोई और रखेगा। आपको इतना समर्थ होना है, आप इतने अच्छे हो जाओगे, आपकी हेल्थ इतनी हेलो, मेरी बात में समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई आपका ना बीच में Can you थोड़ा repeat? हो गया था। हाँ, बीच में कुछ होल्ड हो गया था, प्लीज रिपीट। ओके। सो मैं गाइज यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सीनियर होते जाते हैं, सीनियर सिटीजन बनते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पेशली लेडीज, आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि हम अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो लोग हमारा ध्यान रखते हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है मेरे को कि हमारी फैमिली हमारा ध्यान रखती है। प्लीज आप लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी, आपकी फैमिली नहीं, आप अगले 20 दिनों में आप आपकी फैमिली का ध्यान रखोगे, आप अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे और आप उनकी समस्या का समाधान बनोगे। प्लीज आप ये मत सोचो कि हम उनके पे डिपेंडेंट हैं। और मैं बस ये कहना चाह रहा था, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होने वाला है अगले 15-20 दिनों में, अगर आप इस फीलिंग में रहते हो कि आप खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे और आप उन लोगों का ध्यान खुद रख पाओगे। तो प्लीज ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए समर्थ हूं। थैंक यू। एनी मोर शेयरिंग गाइस बिफोर वी स्टार्ट? नम्रता जैन। नम्रता जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मतलब थोड़ा कैमरा। हाँ, I wanted to share with you something. अभी
7-8 दिन हो गए, I was wondering कि मेरे साथ कोई मैजिक क्यों नहीं हो रहा. So मैंने रवि जी की और आपकी बात थोड़े टाइम पहले सुनी थी कि बिजनेस में थोड़ा अग्रेसिव बनना पड़ेगा और जैसे मतलब I told my husband कि you know माइक पास में रख लीजिए नम्रता जी, बिल्कुल आवाज नहीं. हाँ माइक नहीं, बहुत धीरे आ रही है, मतलब वी आर बेयरली ऑडिबल. मैम आप अपने मोबाइल को पास में ले जाके बोल सकते हाँ. हैं, ईयरफोन्स हटा के. आप ईयरफोन हटा दो, मोबाइल पास में ले लो आप. Hello, can you hear me? आप परफेक्ट है. Can you hear me? हाँ जी, अब सुन सकते हैं. ओके तो मेरे को यही लग रहा था कि कुछ मैजिकल नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, एवरीबडी इज बीन शेयरिंग एंड आई वाज फीलिंग कि कुछ होना चाहिए. सो आई जस्ट हर्ड रवि जी एंड अंकित जी, आप लोगों ने डिस्कस करा था कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव इन योर बिजनेस एंड एवरीथिंग. So I shared this with my husband कि रोहित, why don't you become aggressive and जो तुम्हारा काम है don't think कि अभी कुछ नहीं हो रहा, बाद में होएगा and all that. You'll be surprised that yesterday in the morning he got an order and that too the customer was like immediate भेजो. सीकर में भेजना था, कोई केमिकल था उसके कंस्ट्रक्शन का, and वो बोला अभी भेजो अभी भेजो. So वो फटाफट रोहित ने अरेंज करा, my husband, and आप बिलीव करो वो हमारा ड्राइवर टाइमली आ गया एंड टाइमली उसको माल मिल गया एंड उसने कैश पेमेंट टाइमली कर दी उसी समय ऑन द स्पॉट एंड ही गॉट द पेमेंट एंड 3 बजे तक एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड इट वाज so magical for me and I really wanted to thank you all, from bottom of my heart, Ravi ji and Ankit ji and everybody in the group. So all these positive vibrations and how it works, I'm really grateful. Thank you so much. Ravi bhai, can I answer for that? Yes, please. So I am into jewelry and jewelry अगर आज की तारीख में बोले ना, कोरोना के अंदर कौन घर बैठे हुए लोग ज्वेलरी कौन खरीदेगा? I'm telling you from last 2 weeks, every day I'm getting orders. Yesterday also I got an order for more than 100 rings and customer wants ASAP कि अभी भेजो. मुझे लगा वो आइडिया है, मैंने बोला यार ये जब यहाँ मांग रहा है तो दूसरे शोरूम में भी डिमांड होगी. तो मैंने दूसरे शोरूम फोन किया, वो बोले हाँ हमारे को भी डिमांड है, आप कल अपना डिजाइन भेजो. तीसरे शोरूम फोन किया, वो बोले हमारे पास भी यही चीज की डिमांड है, आप ये चीज भेजो. So you guys has to be aggressive and gratitude मतलब क्या होता है कि gratitude आप इस तरीके से मानो कि आपको यहाँ से शहर जाना है तो रास्ते में एक तो होता है ट्रैफिक खूब मिलता है और एक होता है खाली सड़क मिलती है कि फट आप 5 मिनट पहुंच गए. तो ग्रेटिट्यूड यही पावर है, आपकी जो चाहिए ना वो आपकी सड़क खाली कर देगा और आपको जो चाहिए ना फट पहुंचा देगा. हाँ, yeah, I really agree. Thank you so much. थैंक यू नम्रता very जी. happy. Yeah. सबसे बड़ी बात तो चलो ऑर्डर तो आया पर पेमेंट भी आ गया, ये बहुत ही बड़ा जादू है आज की तारीख में. बट थैंक यू सो मच. अच्छा, इन ऑर्डर में जो मेरे पास ऑर्डर आया ना, खास बात ये है रवि भाई, पेमेंट एडवांस है. सोना मैं बोला मेरे पास सोना, मतलब आई विल नॉट बाय सोना एट दिस रेट एंड इट्स एडवांस मनी. चलिए, वेरी गुड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंकित आप करवा रहे हैं आज एक्सरसाइज पहले या अपन चैप्टर पढ़ें? लेट्स स्टार्ट. मेरे को है ना रवि भाई कल बहुत क्वेश्चंस आए थे कि मैजिक नहीं हो रहा है, वी आर स्टकिंग अप, आर वी डूइंग इट राइटली, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, कई लोग बहुत आगे पहुंच जा रहे हैं, people have started like हम लोग आगे का हमारा जीवन का फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं and all those things. There is like lot of things happening, so I want to clear some air onto that point. मतलब मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग है ना एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और हम एक साथ आगे बढ़ें. मतलब we don't want to, कई जने बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई जने सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा. तो इस सब पे क्लैरिटी कर लेते हैं. दूसरा, कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम पॉजिटिव हैं बट लेकिन हमारे आसपास की सराउंडिंग बहुत नेगेटिव है, उसको कैसे कंट्रोल करें रियलिटी के अंदर. बोलते हैं यार ठीक है ग्रेटिट्यूड बोलना भी होता है, बट हमने बोला भी ग्रेटिट्यूड तब भी नहीं हुआ. तो व्हाट आर द ट्रिक्स, स्मॉल ट्रिक्स ऑन टू दैट. तो वो चीज शेयर करना चाह रहा हूँ. तो एक सेकंड में पीपीटी शेयर कर लेता हूँ. So if so these are 5 things you need to know how to kickstart your manifestation engine. मतलब आज मैं आपका जो मैनिफेस्ट का इंजन है ना वो किक स्टार्ट कराने वाला हूँ. अगर आप किसी को याद हो, पुराने जमाने के अंदर जो स्कूटर होते थे
तो स्कूटर को जब किक स्टार्ट करते थे तो थोड़ा वार्म अप करते थे, एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग वार्म अप करते थे। तो अभी जो इनिशियल अभी मैजिक का दिन चल रहा है ना, ये एक वार्म अप की तरीके से है। वी आर वार्मिंग अप। मैनिफेस्ट करना तो अब चालू करेंगे, बट आज अपन वार्म अप में क्या करना है ये जानेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इन वार्म अप। रॉकेट तो लगेंगे ही लगेंगे, सबके लगेंगे। So step 1 of warm up is knowing and acknowledging. आपके पास जो है उसको जानना और उसको acknowledge करना। Acknowledge means कि हाँ उसको thank you बोलना कि you know what I have, जानना, एक एक चीज को जानना कि आपके पास किस किस क्या क्या चीज से आप blessed हो, and acknowledge it, thank you it. This is the step 1 and nobody go forward. मतलब जहाँ अपन ये step है डे 12 तक nobody is going forward. आज की तारीख में we will stay in present. जो हमारे को मिला है और मिलता रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो स्टेप 1 के अंदर नोइंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप विद योर सोर्स विच इज यू। मैं ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी पीपल अपने आप में सेल्फ डाउट करते हैं? वाई और एन में जवाब दीजिए प्लीज। वाई और एन दोनों मिलके आ रहे हैं। दिन में अपन लोग काउंटिंग में बताना 1 2 3 4 5 6 दिन में कितनी बार अपन अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं? We appreciate ourselves कि यार मजा आ गया अंकित, wow what are you, how are you, fantastic. How many times we appreciate? 1 2 0 1 2 3 4 5. Just write in numbers. So many people are writing 0, कई लोग बोल रहे हैं 10 हैं, कई लोग ये हैं। आप ये मानिए जब तक आपका मैनिफेस्टेशन इंजन चालू नहीं होगा, जब तक आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ अच्छी नहीं होगी। To kickstart your manifestation, you need to kickstart your relationship with yourself. What is the self-image you have in yourself? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? That is one of the most important thing what matters in the life. जैसे अभी आंटी ने शेयर किया था कि my family loves me. Do you love yourself? We need to ask this question to ourselves. How many times we appreciate ourselves? कांच में खड़े होकर कभी अपने आप को बोलते हैं कि वाह यार क्या, मतलब how beautiful you are, how intelligent you are, you are rocking, क्या personality है. There are 3 types of communication. What happens? One, I am talking to you, you guys are talking to me, and what I am talking to into my head. हम आपस में क्या बात चल रही है उसको तो ध्यान देते हैं कि उसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे क्या बोला। आपस अपने अंदर मन में क्या बात चल रही है पता ही नहीं है। अपन जैसे अपने मन में बोलते हैं नहीं यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मैजिक तो मेरे साथ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों गंद मचा रखी है अपने दिमाग के अंदर? हर चीज जो आप सोचते हो ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है अगर आप सोचो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेगेटिव सोच के आप खुद नहीं सोचते ना, तो आपके आस पड़ोस वाले जो सोचते हैं ना, आपने उसको रियलिटी मान ली है, आपने उसको अंदर मान लिया कि हाँ मेरी रियलिटी यही है कि मैं नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आप शेयरिंग सुन रहे हैं जब उनके साथ पॉसिबल है तो आपके साथ भी पॉसिबल है। जस्ट बिलीव इनटू इट, जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इनटू योरसेल्फ। एक बात बताइए, इफ यू कांट लव योरसेल्फ, हाउ कैन यू गिव लव टू अदर्स? टेल मी वन थिंग. Are you agreeing with me on this point? Please type Y. If you can't love yourself, how can you love others? So all those people who have called me also, कई लोगों का फोन भी आया, रवि भाई के पास भी आया. Stop changing the world. अपनी कोशिश ये कहती है कि हमको खुश रखने के लिए हम सोचते हैं कि हमको दुनिया की जरूरत है। दुनिया की जरूरत नहीं है हमको खुश रखने के लिए, हम अकेले ही बहुत हैं। स्टॉप चेंजिंग द वर्ल्ड, वी आर ऑल चेंजिंग द वर्ल्ड। हम सब एक दूसरे अपनी सराउंडिंग्स को बदलने में लगे हुए हैं, खुद को कोई बदलना नहीं चाहता। ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन मैजिक की जो क्लास है ना, ये खुद के लिए है।
सिर्फ फॉर योरसेल्फ, स्टॉप चेंजिंग द वर्ल्ड। जब दिन आप अपने आप को चेंज कर लोगे, आपकी सराउंडिंग्स बदल जाएंगी 101%। बट स्टार्ट चेंजिंग, स्टार्ट अ चेंज विद योरसेल्फ, यू बिकम द चेंज, डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी। आज तक आपने ट्राई करके 25 साल निकाल ही दिए, 23 साल निकाल ही दिए, 20 साल निकाल ही दिए, क्या कर लिया, क्या उखाड़, कुछ नहीं। So start changing yourself, start changing, nothing else, nothing will change until you will change. मैं थोड़ा सा हार्श बोल रहा हूँ, I'm really very sorry, but then again जो people मुझे समझ पा रहे हैं ना, they will understand by heart. start pampering yourself. हफ्ते में एक बार स्पा जाना है, हफ्ते में एक बार, मतलब you have to go to spa, whatever you love, उसको करना है। आपकी जो हॉबी है उसको क्यों छोड़ रखा है? कोई लोग सिंगिंग करना पसंद करते हैं, कोई लोग डांसिंग करना पसंद करते हैं, बंद कर दिया उन्होंने अपनी हॉबी। जब आप छोटे बच्चे थे, आप हर दिन वो काम करना चाहते थे। मेरी बच्ची को अगर आज गाना सुनना पसंद है, वो हर दिन गाना लगा के सुनती है। क्यों अपन बचपन में नहीं रह सकते? Why can't we live ourselves? अपनी हॉबीज को अपन भूल चुके हैं। Start again your hobby. अंकित, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा, if you हाँ, allow. आप ऐड कर सकते हो, no issues. So guys, अंकित का कहना ये है कि हम लोग जब अपने आप को देखते हैं, हम आईने में जब अपने आप को देखते हैं, तो आप किस चीज पे ध्यान देते हो? लेडीज, जेंट्स, यार ये फुल सी हो गई, बाल सफेद हो गए, यहाँ पे मोटा हो गया, कमर में फैट आ गया, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग लग रही है, ये सारी चीजों पे क्यों ध्यान देते हो आप लोग? अगर आप इन सब चीजों से बाहर निकल के अपने आज एक कोशिश करना, सेशन के बाद जाके कपड़े उतार के मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार करना, कि यार तू सलमान खान है, तू ऐश्वर्या राय लग रही है। अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हो उतना पैम्पर करना, देखना आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। मजा आ जाएगा आप लोगों को अपने आप को प्यार करने में। ये जो अंकित कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को प्यार करना चालू करो तो पूरी दुनिया आपको प्यार करने लग जाए। थैंक यू अंकित। सिंपल एंड लास्ट, अगर आपको लगता है कि यार मेरे आसपास की सराउंडिंग अच्छी नहीं है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसका एक ही तरीका है, गेट इनटू योर हैप्पी जोन। हैप्पी जोन क्या होता है? योर हैप्पी मूड, जिससे काम करके आपको खुशी मिलती है। कल शायद अक्षिता ने शेयर किया कि मुझे बेकिंग से खुशी मिलती है, तो जो बेक, जितना गुस्सा आ रहा है ना उतना ही बेकिंग में निकाल दो, तो सारा गुस्सा ठंडा होके अपने आप कामनेस आ जाएगी। या फिर जो मेरा आइडिया है, मैं क्या करता हूँ, मैं हैप्पी सॉन्ग सुनता हूँ। मेरी एक हैप्पी सॉन्ग्स की लिस्ट है, वो सुनता हूँ। और हैप्पी सॉन्ग्स मींस हैप्पी सॉन्ग्स जो मुझे हैप्पी करते हैं। मैं ना उठ पटांग के सॉन्ग नहीं सुनता, जैसे कि है ना तेरा घाटा मेरा क्या जाता, तो ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं। लाइफ में दुख ही दुख है, मतलब आप सॉन्ग्स भी है ना बड़े केयरफुल होकर चूज करो। लोगों ने ना सॉन्ग्स भी अपने ना बड़े गंदे से लगा रखे हैं, सुख और दुख आता जाता रहता है। अरे क्यों सुख और दुख आता जाता रहता है? सुख ही सुख है। लिसन टू परफेक्ट सॉन्ग्स प्लेलिस्ट, मतलब ऊट पटांग सॉन्ग्स जिसमें ना नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नहीं सुनने वैसे सॉन्ग्स, उससे नेगेटिविटी आती है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में तो अच्छा बुरा होता रहता है। कल मेरी वाइफ गाना गा रही थी, मैंने नहीं किया क्या गाना गा रहे हो, अच्छा गाना गाओ जिससे पॉजिटिविटी आती है। बोलो कौन सा गाना गाओ? लव यू जिंदगी, आई लव माई जिंदगी। यार अपन अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, तो जिंदगी वापस आपको वैसे मौके देती है जब आप कोसते रहो। So listen to happy songs, get into happy zone, and until you conquer the war on negativity, don't stop. जब तक आपकी नेगेटिविटी से वॉर नहीं खत्म हो जाए ना, स्टॉप मत करना। This is point number 1. Second is relationship with your source. Again, your father and your mother. रवि भाई ने बीच में एक्सरसाइज कराई थी, that was wonderful exercise. कई लोगों के आंसू आ गए थे, बट कहीं लोग उसके अंदर है ना कोई रिएक्शन नहीं था, किसी ने बात भी नहीं की होगी, कोई ग्रुप में नहीं बोल रहा, बट देन अगेन आई नो किसी के फादर्स के रिलेशनशिप अच्छी नहीं, किसी का मदर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आई मस्ट टेल यू, आपका जो हार्ट है उसमें डीएनए के अंदर आपके मदर फादर के डीएनए है। जब तक आपका रिलेशनशिप उनसे सही नहीं होगा, जब आपकी एनर्जी नहीं मिलने वाली है आपके इंजन को। आपका जो इंजन है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है आपके मदर फादर हैं।
You need to make good relationship with them. You need to make peace with them. Every day उनसे बात करो. वो चाहते हैं आपको सुनना. सिर्फ उनकी सुन लो आधा घंटा, वो बस खुश हो जाएंगे. मैं कहता हूँ मेरे फादर के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक ठीक थे. हम जब बैठते थे तो हमको मम्मी चाहिए होती थी कि भैया 15 मिनट झगड़ा होने वाला है. आज की तारीख में जब मैंने उनको आई लव यू बोलने लगा, मुझे उनसे इतनी एनर्जी मिलती है कि आई एम टेकिंग अ क्लासेस ऑफ मोर देन 300 पीपल. मतलब आई कांट इमेजिन. एंड दिस इज एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम माय फादर एंड मदर. और कहीं से ये एनर्जी नहीं आ रही है. आई एम टेलिंग यू, जिस दिन से उन्होंने मेरे को एनर्जी देनी चालू की, उस दिन से जाके मेरी ये चीजें चलने लगी हैं. आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, आपकी रिलेशनशिप चलने लग जाएगी, आपकी हर चीज चलने लग जाएगी, हर चीज में इंप्रूवमेंट आ जाएगा. इफ यू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर फादर एंड मदर, अगर किसी का कोई झगड़ा है, कुछ गंदा किया, तो माफ कर दो. मेक पीस विद यू एंड हिम ऑल्सो. ठीक है, हो गया. अगर मान लो बहुत ही गंदे रिलेशन है, आई डोंट वांट टू टॉक, बट एटलीस्ट यू नो मेक पीस. आप नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव तो मत करो. नेगेटिव सोचो मत. जो अपना सेल्फ इनर माइंड का जो कम्युनिकेशन है, उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करिए. प्लीज स्टॉप बीइंग बैड टू योरसेल्फ. आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू. थर्ड थिंग इज स्टार्ट मॉनिटरिंग योर फीलिंग्स. स्टे इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. खुश रहना बहुत जरूरी है टू अचीव एनीथिंग. अगर आप जिंदगी में हाय हाय कर रहे हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग. यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आप सिर्फ है ना, बड़ा मजा आ रहा है आपको कि आपको सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ डाउट, सेल्फ मिजरी में रहने का, कि हाँ यार मैं सेल्फ मिजरी हूँ, भगवान को मैं कोस सकती हूँ. नहीं रहना इस फीलिंग के अंदर. बहुत गंदी फीलिंग होती है. मैं रह चुका हूँ इस फीलिंग के अंदर. ये फीलिंग अच्छी नहीं है. कम आउट ऑफ दैट मिजरी फीलिंग, जहाँ पे आप भगवान को कोस रहे हो कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसी लाइफ क्यों दी, ये क्यों किया, वो क्यों किया. स्टे इन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. जो भगवान ने दिया, थैंक यू. तो मैं एक फीलिंग चार्ट दिखाना चाहता हूँ. 2 अपोजिट फीलिंग है एंड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स टू मैनिफेस्ट. मतलब अगर आप कोई चीज फियर से मैनिफेस्ट करते हो, वो फट चली चली आती है, और अगर कोई चीज लव से मैनिफेस्ट करते हो, वो भी चली जाती है. तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं लव की फीलिंग में रहूंगी या फियर की फीलिंग में रहूंगी. जिस चीज का आपको फियर है ना, वो कल हो जाएगा आपके साथ. और जिस चीज से आपको बेइंतहा प्यार है, बेइंतहा चीज है, वो हर दिन होगी आपके साथ. डिसाइड कि आपको किस फीलिंग में रहना है. Please type which feeling you want to stay in the chat. सेकंड फीलिंग जो इसके नीचे की फीलिंग है, जस्ट नीचे की फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड या वरी. ये भी दोनों अपोजिट है. आज के अपन बिजनेस को लेके वरीड है. जैसे आज उन्होंने एग्जांपल शेयर किया कि मेरे हस्बैंड को मैंने जस्ट इतना सा बोला कि कस्टमर को फोन तो करो, आप क्यों वरी में बैठे हो कि बिजनेस नहीं आएगा. ग्रैटिट्यूड दो, काम हो जाएगा. ग्रैटिट्यूड दिया, काम हो गया. और इन्होंने तो अभी तो दाना चका है, अभी तो लड्डू चकना बाकी है. स्टॉप वरिंग अबाउट बिजनेस, स्टॉप वरिंग अबाउट हेल्थ, स्टॉप वरिंग अबाउट एनीथिंग. रिलेशनशिप के बारे में वरी करना छोड़ दो. इतने साल तक वरी किया, हमारे साथ 28 दिन आने वाले वक्त में ग्रैटिट्यूड में रह लीजिए. चमत्कार तो वैसे ही हो जाएगा 101%. और मैं ये कहता हूं कि अगर चमत्कार नहीं हो रहा ना, तो ग्रैटिट्यूड में कोई ना कोई कमी है डेफिनेटली. 4th पॉइंट मैं ऑलरेडी कल डिस्कस किया था. गेट क्लियर व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ. आपको लाइफ से चाहिए क्या, आपने क्या है. अपने हिंदुस्तानी लोगों के अंदर एक आदत है. मैं कल एक सेमिनार में था, उसने बोला कि अपने हिंदुस्तान लोग 200 साल गुलामी में रहे हैं, और हमारे माँ बाप ने अपना माइंड ऐसा ट्रेंड है कि भैया जो मिला है ना, जो मिला है यार इतना ही मिलेगा, इसी में रह लो, इसी में अपना गुजारा गुजार लो. अरे नहीं भाई, नहीं गुजारा गुजारना, मुझे चाहिए जिंदगी से. स्टार्ट आस्किंग. अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. अपनी वांट की लिस्ट बनाइए, बड़ी बनाइए, जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइए. जो विशेष हैं वो लिखिए, भगवान सब देगा. आप मांग ही नहीं रहे हो. आपका ना मांगने का चैनल ही खत्म हो गया है. आपको ये लग रहा है भगवान ने जो दिया ना इतना ही देगा, उससे आगे नहीं देगा. अरे देगा, आप मांगो. एंड लास्ट, ये तो हम हर दिन सिखा रहे हैं, गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव एंड रिसीव टिल नाउ.
अभी की तारीख में टिल डे 12 आप इसी जोन में रहेंगे सब लोग, कोई आगे नहीं जाने वाला। सब लोग जो मिला है, जैसे मिला है, जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजंट मैटर, बट वी विल नॉट गो फॉरवर्ड कि हमारे को आगे की लाइफ, प्रेजेंट लाइफ को और कैसे अच्छा करना है, वो आगे अपने आप चैप्टर में आएगा। दिस बुक कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड एनीबडी, बिकॉज मेरा रवि भाई का कई कंसर्न है, कई लोग है ना आगे पहुंच जाते हैं कि हमारी लाइफ सुधारे कैसे। मतलब हमारे को तो है ना एक काम करो कि एक है ना वो मैजिक वॉन्ड दे दो जिससे है ना चमत्कार से लगाए और ये ठीक हो गया। नहीं, it will take time. Start giving gratitude for what you have and receive till now. लास्ट में कुछ पॉइंट जो मैं वापस सबको बोलता हूँ, स्टे इन प्रेजेंट, डोंट जंप फॉरवर्ड। मैजिक में लॉजिक मत ढूंढिए। मैजिक के अंदर जहाँ मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं है, जहाँ लॉजिक है वहाँ मैजिक नहीं है। जो भी जने जो मुझे सुन रहे हैं चैट के ऊपर और जो लॉजिक ढूंढ रहे हैं लाइफ के अंदर कि मैं लॉजिक से लाइफ ढूंढूंगा और मेरी लाइफ लॉजिक से चलती है, उनके साथ मैजिक नहीं होगा, ये पक्का है। और जो मैजिक में जिंदगी रहते हैं उनके साथ मैजिक ही मैजिक होता है। जो एक कस्टमर ने मुझे कल ऑर्डर दिया, मैंने 2 कस्टमर को फोन किया, दोनों कस्टमर ने वही की वही क्वेरी मुझे दे दी और आज उनको कन्वर्ट कर दूंगा। मैजिक है ये। मैं लॉजिक में कैसे विश्वास कर लूं? लॉजिक में विश्वास करके मैंने 10 साल बिजनेस के निकाले ही हैं। थर्ड पॉइंट, डू द असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, केवल यहाँ आके सुन रहे हो, ये ज्ञान वाली वर्कशॉप नहीं है। मुझे नंबर्स नहीं चाहिए कि 300 लोग सुन रहे हैं, 400 लोग सुन रहे हैं, 500 व्यूज हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे व्यूज हैं। क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आया तो हमारा इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारे इंजन को पेट्रोल जब भी मिलता है जब आपकी शेयरिंग होती है। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, और अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे ना तो भगवान बोलेगा तेरे को इतनी खुशी देने के बाद भी अगर तू शेयर नहीं कर रहा है ना तो कोई फायदा नहीं, मैं तेरे को देना ही बंद कर देता हूँ। भगवान बोल देगा आपको, गारंटीड है। जब मेरा मैजिक चालू हुआ था ना, आप रवि भाई से पूछ लेना, मैं इतना शेयर करता था, रवि भाई बोलते तो सच्ची में हो रहा है या तू ऐसे ही फेंक रहा है? मैंने बोला बहुत सच्ची में हो रहा है यार। और मैं इसलिए शेयरिंग करता था कि मेरे साथ और मैजिक हो, मैं कल फिर शेयर करूं। मैं हर दिन बोलता था कि यार मैं कल ये शेयर करूंगा, मेरे साथ ये मैजिक होगा आज। मेरी सिस्टर थी, वो बोलती थी मेरी इतनी सेल होगी अंकित, तेरा शेयर करूंगी, देख इतनी सेल होने वाली है, आज मेरा एक कस्टमर आने वाले हैं। ऐसे गेम्स खेलते थे हम लोग। आप लोगों को हमको बुलाना पड़ता है नाम लेके कि शेयरिंग करने आओ। वाई? इसका मतलब ये आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, या फिर आपके साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं शेयर करूंगा नजर लग जाएगी, ये वो। क्यों? वाई? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। अगर आपके साथ मैजिक हुआ है, प्लीज डोंट स्टॉप इट टू योरसेल्फ, हेल्प अदर्स आल्सो। अदर्स नीड वेरी मच हेल्प। अगर हम लोग, मेरा और रवि भाई के अंदर अगर ये होता कि हमको हमारी नॉलेज शेयर नहीं करती, तो हम लोग अभी आज की तारीख में हमारा बिजनेस छोड़ के ये काम नहीं कर रहे होते। हम लोग ये काम नहीं कर रहे थे। वी हैव अगर हम आपसे अगर कुछ चाहते हैं ना तो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, स्टार्ट टीचिंग, स्टार्ट गेटिंग अदर पीपल इनटू ग्रेटिट्यूड। जिसको आपको लगता है उसको जरूरत है, उनको बुलाओ, बोलो कि बैठ मेरे साथ, बैठ 7 दिन बैठ जा, उसके बाद तेरी जो इच्छा हो कर ले। मैं गारंटी कर रहा हूँ वो 2 दिन बाद ही बोल देगा थैंक यू। कई लोगों ने रेफर करा, जैसे अनीता जी ने बोला कि यार थैंक यू अखिल भाई, आप 6 महीने तक बोलते रहे, मुझे लगा नहीं क्या होता है, बट मैं 7 दिन तक सुनने लगी, मेरी लाइफ चेंज हो गई। प्लीज, आपको जब ग्रेटिट्यूड, जब मुझे खुशी मिलती है ना कि मैंने किसी को अच्छा काम कराया, तो ऐसी खुशी आपको भी मिलेगी। Why don't you want to experience that? Please start experiencing that. Start helping others. It's a cause. Literally, it's a cause. बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों की जिंदगी में स्माइल लाते हो। इससे बड़ा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो किक स्टार्ट है। मजा आ जाता है मेरे को दुनिया के अंदर खुशी, मतलब मैं तो चाहता हूँ दुनिया ना पूरी खुश से भरी हो, खुशी खुशी जीनी है आज तक। 5th पॉइंट, डोंट रेजिस्ट, जस्ट लेट इट फ्लो। डोंट रेजिस्ट मीन्स कि आप जिंदगी में क्या होता है, आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी हुई है एंड यू आर स्टॉपिंग नेगेटिविटी टू कम एंड गो। इसमें मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपका जो मन है ना, मन एक बाल्टी की तरह है, बाल्टी की तरह। और मैंने कई लोगों को ये एग्जांपल शेयर भी किया है। और अगर बाल्टी फुल हो, ठीक है, उसमें अगर ऊपर से पानी गिर रहा हो तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आपकी बाल्टी ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है ना,
अगर कोई भी नेगेटिविटी डालेगा ना, इट विल फ्लो, डोंट वरी अबाउट इट, उसे रेजिस्ट मत करो। अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिविटी को अंदर लेके आ रहे हो। जस्ट लेट द नेगेटिविटी फ्लो, वो आएगी और चली जाएगी। डोंट रेजिस्ट कि नहीं 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 नेगेटिव, डोंट रेजिस्ट, जस्ट लेट इट फ्लो। आप वॉल बन जाओ नेगेटिविटी को लेके, जस्ट लेट इट फ्लो। And the sixth and the most important point is never doubt and get desperate in the process of manifestation. Let it have in its own path. Trust the process. Trust the process. Universe is working for you. I'm telling you, अगर आप डाउट करते हैं, डेस्परेट करते हैं, तो वो विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाती है कि तू बोला तो मैं उड़ा, तू नहीं बोला तो मैं उड़ा। Don't doubt and desperate in the process of manifestation. यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। आकांक्षा जी की शेयरिंग थी, लास्ट ईयर उन्होंने उनका फादर का ऑपरेशन कराया, फादर ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ हुआ। विद इन दिस वीक उनके फादर की मिरेकलस हीलिंग हो गई एंड उनको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में थैंक यू काम कर रहा था। उनको हो सकता था कभी डाउट था, कभी नहीं था, बट वो थैंक यू देते गए लास्ट ईयर तक और उनका काम हो गया। आकांक्षा जी, कैन आई अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन प्लीज वापस बोलिए ना आपका, मतलब इट वाज अ पावरफुल शेयरिंग, मतलब मेरे दिल को तो हिला दिया उन्होंने। और उनका फादर का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, किडनी ट्रांसप्लांट था। Yeah, so both my parents, like my mother was a donor and my dad underwent kidney transplant. So the entire time we were just giving thanks to the the hospital staff, even to the situations, adverse of the situations, like my father was detected of TB in between. Also his antibody levels, which were supposed to be there, was not going down easily, but we kept on thanking the entire situation, the staff, the doctors, kept on blessing them, and the operation went smoothly. I mean, dad and mom, they both have healed miraculously, and we can't be thankful enough, so that is the thing. चलो रवि भाई, मेरा हो गया, now it on to you. Yeah, there is one more thing I wanted to ask. बताएं। What is the difference between appreciation and gratitude? Is it the same thing? Is it as good as appreciating is as good as giving gratitude? अप्रिसिएशन मीन्स कि ग्रेटिट्यूड, ये देखो दोनों की फीलिंग्स में फर्क है। एक तो आप किसी की अच्छाई ढूंढ रहे हो, ठीक है, और अच्छाई ढूंढ के आप उसको बोलो कि यार ये अच्छाई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मी। बिकॉज ग्रेटिट्यूड क्या होता है, आप बेसिकली जो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, यू आर, that is something, and you appreciate a person's behavior. So appreciation and gratitude are two different things. So gratitude is something that you are really thankful that इसने मेरी लाइफ में आने के बाद ये काम अच्छा हुआ। आप नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करते हो, और नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है अगर कंट्री के लिए अच्छा है तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया एक मूवमेंट चलाया। योर मूवमेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। थैंक यू भैया। Thank you, Ankit. Very good presentation, very well explained. Thank you, Akansha, for wonderful sharings and wonderful questions. आज मजा आ गया। और basically appreciate और gratitude is, appreciate में मतलब आप किसी चीज की अहमियत समझते हो, किसी चीज की वैल्यू समझने लग जाते हो, और gratitude की फीलिंग में आप उसको अपनी उस वैल्यू को एक्सप्रेस करने लग जाते हो। दोनों में जो फर्क है ना, दिस इज द फर्क। एंड द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज कमाल की फीलिंग। अप्रिसिएशन इज डेफिनेटली वांट। आज एक बेसिक नीड है हर इंसान के लिए, खाना, पानी और अप्रिसिएशन। तो जिस इंसान को आप अप्रिशिएट कर रहे हो और उसको वो मिल रहा है, तो कमाल की चीज है वो। सो अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड देना इज सुपर इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस दैट। यस भैया, थैंक यू सो मच। सो गाइस, एक और हमारे साथ एक यंग ब्लड हैं, सायशा। मैं चाहूंगा सायशा अपनी फीलिंग को शेयर करे, बट उससे पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। चैप्टर के बाद हम लोग सायशा से उसकी फीलिंग सुनेंगे। Saisha is a student here and she has had very good time, good feelings. And आज चैप्टर कौन पढ़ रहा है?
So Akshata. Can I, भैया? Yes, please go ahead. Day 8, the magic ingredient. A thankful heart hath a continual feast. इसका मतलब यह है कि आपका दिल अगर कृतज्ञ है तो आपके जीवन में निरंतर जश्न है, कंटिन्यूस जश्न है। तो ये बहुत बड़ी लाइन है। अगर आप ग्रैटिट्यूड, आप आभार की फीलिंग में हो तो आपका दिल कंटिन्यूसली जश्न मनाता रहता है, कंटिन्यूसली खुश रहता है। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. तो इसमें रोंडा ये कहना चाह रही है कि भोजन से पहले धन्यवाद करना हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। परंपरा भी मतलब हजारों साल पुरानी परंपरा है कि जब जब हम भोजन करने बैठते हैं तब तब हम उसको आभार देते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। पर अब 21वीं सदी में हम इतनी तेज भागने लग गए हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन की। और अगर आप इसके लिए कृतज्ञ होते हो, इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है। ये आगे इस पूरे चैप्टर में यही बता रही है कि खाने के लिए, भोजन के लिए और पानी के लिए कृतज्ञ होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरे चैप्टर में बताना चाह रही है। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. Yeah, thank you. So ये रोंडा कह रही है कि जब जब आप सोचेंगे आपको बहुत तेज भूख लगती थी, तो ना तो आपको कुछ याद आता था, ना आप सामान्य ढंग से सोच पाते थे, ठीक से काम भी नहीं कर पाते थे और शरीर में कमजोरी महसूस होती थी। All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there's a great deal to be grateful for about food. So आप नहीं खाते हो खाना तो आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है, आपका शरीर कांपने लग सकता है, आपका दिमाग दुविधा में पड़ सकता है और आपकी भावनाएं मतलब कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब चंद घंटों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता अगर आपको खाना नहीं मिले तो। जब जब आपको भोजन नहीं मिलता है तब तब आप बहुत कमजोर फील करने लग जाते हो। तो इन सब चीजों के लिए आभार देना कितना जरूरी है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat the fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetable with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. आप ये सोचिए, जब जब आप भोजन के लिए कृतज्ञ होंगे, महसूस करेंगे, एक पल का समय निकालिए और उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों की वजह से आप वो भोजन खा सकते हो। आप उस किसान के बारे में सोचिए जो वो फ्रूट और वेजिटेबल अपने खेतों में लगाता है, उस पे पानी देता है, अपना पसीना बहाता है कि आप लोग भोजन कर सकें। Then there are pickers, the packers and the distributors and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. उसके बाद आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपका भोजन पैक करते हैं, ट्रांसपोर्ट में लेके आते हैं, परिवहन विभाग के जो लोग हैं, वो दिन रात लंबी दूरियां तय करते हैं कि आप लोग, हम सब मिलके वो फ्रेश फूड, ताजा फल, ताजा सब्जियां हम खा सकें पूरे साल भर। अंकित, कैन यू हाईलाइट द पैराग्राफ जो पढ़ेगी अब, सो दैट एवरीवन कैन बी इन सिंक? Start reading.
आप Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. आप उनके बारे में सोचिए जो दूध वाले होते हैं, जो चाय बनाते हैं, जो कॉफी बनाते हैं, जो सारा आपका भोजन पैक करके दिन रात मेहनत करके आपके पास लेके आते हैं. The world's food production is a breathtaking orchestrion that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. रोंडा ये कह रही हैं कि जो विश्व का आहार उत्पादन है वो एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम कैसे होता है. जब आप इसके बारे में विचार करेंगे, स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज, स्कूल, हॉस्पिटल, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल हैं. ये बोलिए, आप अपनी भावनाओं को डालो और उसको समझने की कोशिश करो कि कैसे आपको पूरे संसार को हर चीज हर समय मिल जाती है. इसमें जरूर कोई चमत्कार होगा, वरना आपको सुबह वाला सुबह दूध दे जाता है, आपके घर में दाल आ जाती है, रोटी आ जाती है, चावल आ जाती है. ये छोटी छोटी चीजों के बारे में एक बार आप सोच के देखो कि कितना बड़ा चमत्कार है. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetarian, animals, or human life. थैंक यू. लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो इसमें ये क्या है, भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है. क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना हो. पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है. अब ये पानी के बारे में बताना चाह रही है कि पानी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन में. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keep our bodies alive. Water, 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 glorious water. पानी के बिना ना कोई भोजन, वनस्पति, पशु, मानव जीवन संभव नहीं है. हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं. हम हर वाहन में, अस्पतालों में, उत्पादन में, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, ट्रांसपोर्टेशन में, सड़क बनाने में, कपड़े में, संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद पर उपकरण बनाने के लिए प्लास्टिक या कांच या धातु, आप जिस भी व्यापार में आप हो, आप ये सोचोगे कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हमारी दवाइयां, जो हमारा जीवन बचाते हैं, जब वो भी, उसमें भी हम लोग पानी का यूज करते हैं. हम अपना मकान बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं उसमें भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है. पानी, पानी, जीवनदायक पानी, मैजिकल पानी, पानी इतना ज्यादा जरूरी है. If there is a magic on this planet, it is contained in water. Lorien Esley. अगर इस धरती पे, अगर इस पृथ्वी पे कोई जादू है तो वो पानी है. और आपको भी मालूम है कि आपका शरीर भी 77% पानी का भरा है. और ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझा था कि पानी में कितना बड़ा जादू है. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature gifts of food and water. To say this... Yeah. Sorry, let me use this second. So, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है कि हम संसार में रहेंगे या नहीं रह पाएंगे. हमारा कोई परिजन या मित्र भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा. आपके आसपास के लोग जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे अगर पानी नहीं होगा.
ये आपको सोचना है। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने, सॉरी, इसको आई जस्ट कंप्लीट दिस पैराग्राफ। रोंडा ये कह रही है कि कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानना और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो अगर आप ये थैंक यू शब्द कुछ भी खाने से और पीने से पहले बोलोगे, तो आप उसको, जैसे अंकित ने बोला, एक्नॉलेज कर रहे हो, उसको आभार दे रहे हो और भोजन और पानी का चमत्कार देख रहे हो। The incredible thing is that when you're grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstance of scarcity of food and water for everyone on the planet. अविश्वसनीय बात यह है कि जिसपे आपको विश्वास नहीं हो सकता कि जितना ज्यादा आप भोजन और पानी को आभार देंगे, वो सिर्फ आपके जीवन में नहीं, वो पूरे संसार की पूर्ति करने में बहुत हेल्प करेगा। आप जितना ज्यादा उसके लिए कृतज्ञ होंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास भोजन और पानी की सप्लाई बढ़ेगी। अगर आप लोग भोजन और पानी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो ये कहना चाह रहा है इसमें कि न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की परिस्थितियों को बदल देगी। अगर हम सब लोग साथ में मिलके आभार व्यक्त करने लग जाएंगे और धन्यवाद देने लग जाएंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी भोजन और पानी की कमी नहीं होगी। ये कहना चाह रहा है। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. इसके अलावा भोजन और पानी के लिए जितना ज्यादा आप आभार दोगे, आपके जीवन में उतना ज्यादा जादू कायम होगा। आप हर प्रिय चीज में अपना सुख देखने लग जाओगे, और जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सपने देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए हासिल हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी जीवन में। In ancient time, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect is quantum physics, refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed have the ultimate effect of well-being on your body. तो रोंडा ये कहना चाह रही हैं कि पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे जब वे अपना भोजन और पानी के लिए आभार देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो शुद्ध हो जाएगा। फिर ये एक क्वांटम फिजिक्स के एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ये मान के चलिए, जब जब आप ग्रैटिट्यूड देख के खा रहे हो अपना भोजन, जब जब आप पानी को धन्यवाद देके पी रहे हो, तो वो पानी प्योर हो रहा है। वो पानी आपके शरीर में कोई भी गलत चीज नहीं होने दे रहा, आपको खुश रख रहा है, आपको हेल्दी रख रहा है। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with the food and drink is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drink, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on. Okay, let me explain this, Akansha. तो भोजन और पेय पदार्थ में जादू, कृतज्ञता से जादू फील करने का तरीका एक ही है।
जब जब आप एक निवाला लेते हैं, उस निवाले को आप मुंह में रख के उसका स्वाद लीजिए। मतलब आप जैसे हम रोटी का अपन भोजन करते हैं, भोजन से पहले जब आप बैठते हो तब आप पहला निवाला तोड़ते हो, उसको जैसे ही मुंह में रखते हो उसका स्वाद लेने की कोशिश कीजिए जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। The taste of food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on food or drink in your mouth and they savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. इसमें बेसिकली जब जब आप ध्यान दोगे खाते वक्त, जैसे मैंने पिछली बार आई थिंक 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात की थी कि हर एक निवाला लेने से पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग फोन वगैरह बंद करने वाली बात भी करी थी, आप सब लोगों को याद हो तो। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप निवाला मुंह में डालोगे और उस पर ध्यान दोगे, उस पर आप फोकस करोगे तो आपको उसका स्वाद आएगा, और आपको उसका स्वाद आएगा तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे, आप उसके लिए कृतज्ञ होगे। और जब जब आप ऐसा करोगे तब तब आपका स्वाद बढ़ेगा, और जब जब आप नहीं करोगे और उस पर ध्यान नहीं दोगे और जबरदस्ती कुछ भी मुंह में डाल दोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव तरीके से बिहेव करेगा। ये कृतज्ञता आपकी ऊर्जा है जो आपके तत्काल को स्वाद को बढ़ा देती है। जैसे जैसे आप खाओगे और ग्रेटफुल होगे तो आपके मुंह में स्वाद भी बढ़ता जाएगा। तो आज ये कोशिश करिएगा, जैसे ही आप पहला निवाला ले उसके लिए आभार देना चालू करना और उसको एंजॉय करना, वो फीलिंग में लाना कि यार ये मेरे शरीर को कितनी एनर्जी दे रही है और कितना अच्छा लग रहा है मेरे को ये स्वाद लेके मुंह में। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at your about to eat or drink and in your mind or loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel more gratitude. तो आज जो भी आप, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी आप खाओगे पियोगे, आप उसको मुंह में लेने के बाद अपने दिमाग से, अपने दिल से थैंक यू फील करोगे और अपने मन में ही बोलोगे। और जैसे जैसे आप ये करना चालू करोगे, इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञ, ग्रेटफुल महसूस होने में भी मदद करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। आज जो भी हम लोग खाएंगे, हम लोग उन सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, उन सारे लोगों के बारे में सोचेंगे, उनको भी ग्रैटिट्यूड देंगे और खाने को भी ग्रैटिट्यूड देंगे और उसका स्वाद लेंगे। जब जब स्वाद लेंगे तो हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी, और फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी तो वो वाइब्रेट होंगी, और वाइब्रेट होंगी तो ब्रह्मांड और महत्व। Let's go. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic word, I have my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel the gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. तो इसमें रोंडा ये कह रही है कि मैंने ये एक्सरसाइज चालू करी थी और मैंने कोशिश करी थी। आप ये सोचिए कि आप उंगलियों से नमक उठाते हैं और नमक को अपने खाने पे छिड़क देते हैं। आप यही इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक जादुई मिट्टी है, आपके हाथ में एक कला है जो आप अपने भोजन पे स्प्रिंकल कर रहे हैं। जैसे आप नमक छिड़कते हैं वैसे ही आप अपने भोजन पे उसको छिड़क रहे हैं। मैं दिखा पा रहा हूँ मेरा हाथ इस तरीके से। जब भी आप अपना भोजन सामने रखेंगे तो उस पे अपने हाथ से यूं मैजिक डस्ट छिड़केंगे और आप एहसास करेंगे, वो फीलिंग होगी कि जो मेरे हाथ में मैं जो भी छिड़क रहा हूँ वो मैजिक डस्ट है, वो एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जादू है, और उस जादुई मिट्टी से जो भी मैं भोजन ले रहा हूँ वो मेरे को बहुत एनर्जी दे रहा है और मेरे को बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव बना। ये आज करना जरूरी है। जो भी चीज आप खाओगे पियोगे उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करोगे
कि ये मैजिक डस्ट है। आप अपने बच्चों को भोजन परोसोगे तो आप उनको भी बताओगे कि मैं आपके भोजन पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाएंगे। जब भी आप परिवार के साथ बैठोगे, आज ये कोशिश करोगे, और सिर्फ यूं नहीं करना है, उसको फील करना है। जो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो भी आप उस पे छिड़क रहे हो उसमें सच्ची में जादू है। If at any time during the day you forget to say the magic words, thank you, before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat the same practice tomorrow. You can afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. रोंडा ये कह रही है कि अगर आज आप भोजन करते वक्त भूल जाते हो या आपके दिमाग से निकल जाता है, तो फिर आप उस लम्हे के बारे में, उस पल के बारे में वापस सोचिए जब हुआ था, और अपने मन में वापस आप उसके बारे में थैंक यू बोलेंगे। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज आप थैंक यू बोलना, भोजन को और पानी को किसी भी हालत में आपको नहीं भूलना। आप जब उसको देखोगे, आपके मन से, आपके दिमाग से, हर जगह से आपको फीलिंग आनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाली, कृतज्ञता वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरे को खाना और पानी मिल रहा है। और उसको एक हैबिट बना लो। खैर ये बोल रही है आज करना है, मैं बोल रहा हूँ इसको तो आप हैबिट ही बना लीजिए। जब भी आप भोजन खाते हैं, आप ये समझिए कि मैं उस पे जादुई मिट्टी छिड़क रहा हूँ और वो मेरे जीवन में बहुत कुछ लाने वाली है। तो इसको आप एक हैबिट बना लीजिए। आज पूरे दिन भर में आपको यही करना है कि भोजन पे और पानी से पहले मन में थैंक यू बोलना है, और उसके ऊपर जैसे आप नमक छिड़क रहे हो या मिट्टी छिड़क रहे हो, इस तरीके से करके और फिर आपको खाना। Being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happens. जीवन में भोजन या पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहन मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। और जब आप इस हद तक ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाते हो तो आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखते हो। बहुत बड़ी लाइन है कि ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में जादू को आकर्षित करती हैं। तो थैंक यू अक्षता, आई विल टेक दिस फर्दर। तो आज की जो प्रैक्टिस है, Thank you so much, भैया। आज की जो प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस यही है कि जो हम करते आ रहे हैं, रोज सुबह 10 ब्लेसिंग्स जो आप लिख रहे हो वो आपको लिखनी है, उसको पढ़ना है, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दूसरा, खाने से पहले आपको 2 सेकंड रुकना है, आपको खाने के बारे में सोचना है, आपको अपने दिमाग में जोर से कहना है थैंक यू। और अगर आपकी जो जादुई मिट्टी है जो आपके हाथों में है, जो जादू आपके अंदर है, उस जादू को निकाल के उस जादू मिट्टी को आपको उनके ऊपर छिड़कना है और उसको थैंक यू बोल के और फिर भोजन को लेना है। तीसरी चीज, रात को सोने से पहले आपके मैजिक रॉक को अपने हाथ में रख के जो भी सबसे अच्छी चीज दिन भर में हुई है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच। अब इसमें किसी को कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल? बिफोर आई रिक्वेस्ट सायशा टू कम एंड शेयर। Sudhir Kabra ji has some. Hello, good morning, everyone. Good morning, Sudhir. Thank you, Ankit. Thank you, Ravi, for this very powerful topic which we have covered today. खाने का सम्मान करना हमारी प्रथा में ही है कि हम लोग हमेशा अन्न को बहुत ही पूजनीय मानते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड देते हैं खाने को या पीने को जो भगवान हमें नसीब करवा रहा है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो कि चैप्टर में कवर नहीं हुई और जो बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, कि हम अन्न को जो झूठा छोड़ते हैं खाना खत्म होने के बाद। हमें बचपन से ही हमारे माता पिता ने सिखाया है कि अन्न से बड़ा कुछ नहीं है। अन्न को झूठा छोड़ना भी उसका अपमान है एक तरीके से। वो उस अन्न का अपमान है जो हमें मिल रहा है, वो उस किसान का अपमान है जिसने इतनी मेहनत से उसे बनाया है, और वो सृष्टि का अपमान है जिसने उस अन्न को उगने के लिए दिया है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि हम अपनी थाली में, हम किसी पार्टी में जाते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं, अन्न को बिल्कुल झूठा ना छोड़ें। आप उतना ही लें अपनी प्लेट में जितना आप खा सकते हैं। It's a humble request to everyone, and thank you for this powerful topic which has been covered today.
थैंक यू सुधीर, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग, मजा आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। खैर मैंने अपने जीवन में लास्ट अपनी प्लेट में कुछ कब छोड़ा था मेरे को नहीं मालूम, मैं भी बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ता। सो सुधीर थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज खाने को वेस्ट ना करें। सो बिफोर वी गो फर्दर, आई वांट साइशा टू प्लीज शेयर, और उसके बाद मीनू राणा जी इसके भोजन के बारे में कुछ शेयर करेंगी, एंड लेट्स हैव और कोई लोग बोलना चाहते हैं। तो साइशा आप हो हमारे साथ? Yes, sir. Good morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग साइशा। तो साइशा हम Yes, sir. सबसे So I यंगेस्ट, just, हाँ प्लीज बोलिए साइशा, गो ऑन। thank you, sir. I wanted to introduce myself. I am a PhD scholar and too young to be here, but yes, there are problems in every stage of life. So I was also suffering from minute problems, but from the very beginning of the first day of this book, I just learned so many things, and I've started being so happy, so much happy that I can't even thank enough. I was lately listening to Mahabharat, so in that भीष्म पितामह said कि आत्मा से या तो श्राप मिलता है या फिर आशीर्वाद. So the thing you two guys are doing for all of us, there's only one thing I can say. आत्मा से आशीर्वाद निकलता है. I'm too young for saying this to you. You're too very elder to us, but there is a thing कि soul अच्छे से less करती है that you are doing so much good to us. And I started imagining very sweet things in my family also and towards also. इतना minute है कि मैं express नहीं करती everything. I pay gratitude to उसका रूप है. I'm very very thankful to both you and all the members. This is a strong energy and it brings smile, it brings help with. थैंक यू साइशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी, बट आपकी एज की लड़की से महाभारत के बारे में सुनना, अच्छी चीजों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वी आपके आई थिंक सिग्नल्स में प्रॉब्लम है, सो वी विल कम बैक टू यू। लेट्स हैव मीनू राणा जी प्लीज। Yeah, good morning, Ravi ji. Good morning, Ankit ji. Good morning, everyone. Wonderful. Thank you so much for the wonderful session. खाने को लेकर अभी 2 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी डॉटर लॉ कर रही है, 5th ईयर लॉ में है, एंड शी वाज वेरी स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज बहुत सारे उनको सबमिशंस वगैरह करने हैं। तो रात में उन्होंने बोला मम्मा मुझे कुछ गरम दे दो, तो कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी? मैंने कहा यस बेटा, व्हाई नॉट। तो मैंने उनको कॉफी बनाई, और कॉफी बनाते समय आई एम एन स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द सीक्रेट और पावर ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ, मैनिफेस्टेशंस बहुत होती है मेरे साथ, बट ग्रेटिट्यूड को कैसे यूज करना है वो इतना नहीं जानती थी, बट नाउ आई एम लर्निंग कि ग्रेटिट्यूड कैसे यूज करूँ। तो मैं कॉफी बनाते बनाते और उसमें मैंने मैनिफेस्टेशंस डाले, उसके अंदर हीलिंग्स डाली और थैंक यू बोला, और बोला कि मेरी डॉटर इसको पी के उनका जो हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाए और वो अपना काम कर सके। और मैं बोलती गई थैंक यू एंड मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा। देन मैंने उनको कॉफी दे दिया एंड देन आई स्लेप्ट। द वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला मम्मा आपकी कॉफी ना मेडिकल मुझे इफेक्ट दिया। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या हुआ? तो बोले मम्मा कॉफी पीने से मैं ठीक हो गई। तो मैंने उनको पूछा कि बेटा कितना देर में, आपको कब इफेक्ट होने लगा? तो वो सोच के बोली मम्मा कॉफी पीते पीते ही ना मैं काफी ठीक होने लगी थी। सो दैट वाज सो मच अमेजिंग कि जो मैंने उसमें मतलब थैंक यू जो बोला और मैनिफेस्टेशंस डाली, वो इट रियली वर्कड लाइक मैजिक। और 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ एंड आई एम यूजिंग द ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूसली। जो मुझे इतना अच्छे से नहीं यूज करना आता था वो थैंक्स गिविंग में सीख रही हूँ अभी, एंड इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच मीनू जी, अब आपके लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक हम लोग ओवर टाइम हो चुके हैं आज। एक क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए। देयर आर न्यू पीपल जॉइनिंग अस, उनको कहां से चालू करना है? वेयर दे नीड टू स्टार्ट? सो प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू नो। तो गाइस सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग नए नए लोगों को बुला रहे हैं, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो आप दूसरे लोगों को भी बोल रहे हैं आओ आओ। सबका वेलकम है, सबके लिए ये ग्रुप खुला है। पर अब आप लोग जिस रास्ते पर निकल चुके हो, मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है पिछले 7 दिन में जिस फीलिंग में आप आ चुके हो, तो वो फीलिंग कल जो आएगा उसको कैसे आ जाएगी? जो मेहनत आप लोग कर रहे हो, जो चीज आप लोग कर चुके हो,
मतलब वो फीलिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है और धीरे धीरे ये स्ट्रांग होती जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कल आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे सारी चीजों को कवर करवाएं। वो चीज, वो एक्सपीरियंस और वो फीलिंग्स वो नहीं ले पाएंगे जो आप ले पा रहे हो। इसलिए शुरू में हमने कहा था कि प्लीज आपके जितने भी लोग हैं उनको बुला लीजिए, पर आप उनको रखिए, उनको बुलाइए, उनको लाना जरूरी है, क्योंकि अकेले में ना तो वो बुक पढ़ने वाले हैं, ना वो इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आप या तो हम एक उनके लिए कोई सेशन, जो लेट आए हैं उनके लिए कोई सेशन प्लान करें अलग से, जहाँ उनको सारी चीजें समझा दें, या आप लोग जो कर चुके हो और आप लोग अपने लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो वो जिन जिन लोगों को आप बुला रहे हो आप उनके साथ बैठ के उनको शेयर करो और उनको समझाओ कि आपने क्या क्या किया। उनको करने दो, पर उनको ये सब वापस करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा। पर अकेला आदमी जब ये पढ़ेगा तब उसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, पर अभी क्या होगा, उनको सेंस मिल जाएगा कि मैजिक क्या होता है। तो आप जो ला रहे हो उनको बताइए आपने क्या क्या किया, उनको वीडियोस के बारे में बताइए, और वो जो कर सकते हैं और वो इस फीलिंग में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट हर चैप्टर की एक्सरसाइज वो दुगनी तिगनी करें। उनको 2-3 दिन पूरे देने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ मैजिक की फीलिंग में रहना है, और फिर वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। पर जो ये ग्रैटिट्यूड अतीत वाला 12 दिन बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को कनेक्ट होना। तो आप लोगों को क्या करना है कि उनको बोलना है कि अगर वो बैठे एक पूरा दिन बैठ के वीडियोस देखें, और जो चैप्टर 1 में 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं तो 10 की जगह वो 20 लिखें। कोशिश करिए कि उनको उस फील में लाना चालू कर दीजिए कि 2-3 दिन आप पूरी मेहनत करके उस फील में आ जाओ। पर उनको वापस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वापस से बुक पढ़नी ही पड़ेगी, सो दैट दे एटलीस्ट फील जो अपन लोग फील कर रहे हैं। बट अगर आज आप उनको नहीं लाओगे तो फिर आप ये भूल जाइए कि 28 दिन बाद जब हमारा ये बुक खत्म हो जाएगी तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आ सकता वो। तो प्लीज उनको ये बोलिए कि जो जो एक्सरसाइज दी थी चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, एटलीस्ट उसको ट्वाइस या थ्राइस उसको रिपीट करें। 8 दिन 9 दिन निकल अपने 7 दिन निकल चुके हैं, तो 7 दिन में अगर आपने 70 ग्रेटिट्यूड लिखे तो उनको 140 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे कि वो हमारी पेस पे आ सकें, वो हमारी फील में आ सकें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ? सो प्लीज आप जिन लोगों को ला रहे हो आप लाओ, यू मोस्ट वेलकम, बट एटलीस्ट उनकी हेल्प कर दो, बिकॉज अंकित और मेरे लिए 150-200 लोगों से बात करना, समझाना बहुत पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जिन लोगों को ला रहे हो आप ही उनको समझाओ, जो आपकी जर्नी हुई है उसके बारे में शेयर करो, और उनको बोलो इन चीजों को एटलीस्ट डबल द टाइम करना पड़ेगा, सो दैट आप हमारे लेवल पे आ जाओ। रवि भाई 300 लोग हैं, वी आर ऑन लाइव ऑन फेसबुक आल्सो। नहीं, ये तो यहाँ पे उसके बाद लोग बाग जो वीडियोस देखते हैं वो दोपहर अलग में, नंबर है, वो अलग नंबर है, वो तो मतलब ये तो प्रेजेंट नंबर है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार, आभार, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के जीवन में मैजिक चल रहा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट जो नए लोग आ रहे हैं हमारे को उनका भी ध्यान लेके आगे चलना है। एक राजन शाह सर की एक शेयरिंग है अराउंड मैजिक राइस करके, उन्होंने एक वो किया था एक्सपेरिमेंट, तो ही हैज मैसेज मी। राजन सर। Yes, Ankit, thank you so much. First, I would like to share something about this today's chapter. Ravi bhai, आपने जो बताया आज हमको, तो I was just thinking about my journey of my life. So in the year 1998, we are government contractors in Mumbai and we are carrying out projects in all over Maharashtra. तो हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था, वो अमरावती से दूर था, अमरावती करके सिटी है, so that was about 20 kilometers from the city. तो वहां पर जो है इंडियन ऑयल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विच वी वर द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वहां पर खाना नहीं मिलता था, तो खाना खाने के लिए वहां पर से हमको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था टू ईट द फूड। तो मैंने क्या किया वहां पर, क्योंकि मेरे इंजीनियर्स थे, मेरा स्टाफ था वहां पर, तो मैंने मेरा एक अपना मेस बना दिया। तो आई मेड अ मेस फॉर माई सेल्फ। वहां पर मेरा कुक था, राजस्थान से आया था, और वो बढ़िया खाना बना के, फ्रेश खाना, हॉट फूड वाज सर्व्ड ओवर देयर टू ऑल माय स्टाफ। तो स्लोली इट सो हैपेंड कि इंडियन ऑयल के जो इंजीनियर्स थे एंड दोस पीपल हु वर वर्किंग फॉर इंडियन ऑयल, वो लोग सब वहां पर खाना आना चालू कर दिया। तो इट वाज सच अ नाइस थिंग। आई रिमेम्बर कि उस 98 की बात है, सो इट वेंट ऑन फॉर अबाउट 2 years और सो। तो वो लोग हमेशा वहां आते थे और उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो जब भी खाना खाते थे वहां पर, तो हमेशा बोलते थे कि अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। तो मुझे आज उस चीज का मतलब समझ में आ गया
कि वो जो बोल रहे थे उसमें कितना पावर था, एंड दे रियली मेंट इट, क्योंकि उनको खाना खाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, उनका 2-2.5 घंटा चला जाता था, क्योंकि वो वहां से वो जंगल में से, मतलब अभी तो जगह काफी डेवलप हो गई है, धनजगांव करके जगह है नियर अमरावती, तो उनको 2-2.5 घंटा चला जाता था। एंड इट सो हैपेंड कि क्योंकि मैंने वहां पर खाने का मेस लगाया था, तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था उसके बाद में कंटिन्यूअसली दे केप्ट ऑन गिविंग मी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहां के जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उनको 20 लाख तक का ऑर्डर देने का उनको पावर में था, तो दे केप्ट ऑन गिविंग मी प्रोजेक्ट्स, वो मुझे प्रोजेक्ट देते गए एंड आई मेड एक्सीलेंट ग्रेट प्रॉफिट्स इन दैट प्रोजेक्ट। बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड टुडे आफ्टर दिस वर्कशॉप, कि जो द पावर ऑफ थैंकिंग एंड द पावर ऑफ फूड was a different, and it creates a magic. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Everybody, we are running late. Just go. Yeah. Thank you. So Thank you, there is one more sharing. Rajesh. Thank you. So now this was an experiment on rice and water, which we did in our building. Bombay. I stay in Bombay, so Bombay में हमने lockdown के time पे we did this experiment that we took 3 bottles, what you had already shared in one of your program. And it was amazing because I actually wanted to experience myself कि भाई ये होता कैसे है। तो जब हमने ये 3 बॉटल के अंदर चावल रख के हमने एक बॉटल को आई लव यू बोला और एक बॉटल को आई हेट यू बोला, और जब 21 दिन के बाद में हमने हमारी बिल्डिंग की लॉबी में जब वो बॉटल्स को ओपन किए, तो आई लव यू की बॉटल में जरा भी बास नहीं आ रही थी, इट वॉज नॉट स्मेलिंग बैड, इट वॉज ओके। एंड जब हमने आई हेट यू का बॉटल खोला, it was stinking so bad, it was so bad, मुझे याद है कि उसकी जो स्मेल थी वो 2-3 घंटे मेरे अंदर रह गई थी। So there was so much of fungus inside that bottle. So that was the experiment we did on water, और उससे ये समझ में आया कि water has got memory, and since our body has got more than 70% water, क्या करते हैं अगर हम गुस्सा करते हैं या we are not in gratitude, what happens to ourselves. So this was a very nice experiment which we did in our building, and that is all I wanted. Thank you, Rajan. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Anyone, any questions, please group पे लिख दीजिएगा। And आप लोगों का वापस बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, and have a wonderful day. Smiling day, keep smiling, सारा दिन भोजन। Thank you. Thank you भैया। Thank you very much. Thank you. रवि जी, अंकित भैया। Thank you। Thank you जी। Thank you रवि जी। Thank you. Thank you। Thank you। Thank you। Thank you। Thank you। Thank you so much.